زیارت اربعین یہ ہچنان ولو بہ ونو تہ حسین سند دشمن کم حسین سند دشمن کم تہذ معرفی ترنا اس امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام صادق علیہ السلام فرماوان یم دشمن ناز تمو دشمنو کیا کور وشرا آخرتہ بثمن الاوقس دشمن تم امام حسین علیہ السلام سند یمو پن آخرت نیون کنت کشر پٹ ونو کھٹن پونسن یمو معمولی چیزن کیا کن پن آخرت اور وقت کس حسینس مقابل درائے آخرت کنان عمر سات پن آخرت کنان شہر رائے ایرانس مز اخ شہر تمس دپ یزیدن دپس اے عمر سعد اگر ژٕ حسین کرہن نا شہید ژٕ بناوت بہ گورنر کتک شہر ریک لہذا شہر ریس کنن کیا پن آخرت درو امام حسین علیہ السلام شہید کرنے خاطر شمر یوزن امام علی علیہ السلام سے لشکر کمانڈر اس جنگ سفینس مزن تم کن معمولی رقمس کیا کن تم پنن آخرت لہذا درو امام حسین علیہ السلام شہید کرنے یم تے چاہے خولی اس چاہے سنان ہو چاہے کات ظالم اس کربلاس مز معمولی چیزوں کن تمو پن آخرت مگر سو معمولی چیز تہ کیا گوکھ نہ پتہ نصیب کہین گھسک ما نصیب مگر یل مختارن کور نہ قیام مختارن یت اکہ قیام پرت کس ظالمس توے یل مختارن یہ کام کرن اے مختارن کور امام زین العابدین سن دل واریہ خوش بعد از کربلا پان ژورم امام زین العابدین علیہ السلام فرماوان بعد از کربلا میں تمہ سات خوشی محسوس کرمز یم سات مختارن میں برو کن تھو ہرملا سن سر کیا ہرملن واریہ ظلم کورمتن ہرملن تیوتا ظلم کورمت یت نہ حد سٹھا غمگین ژورم امام مگر مختار سی امہ کامہ ست بعد از کربلا خوش گسان کس ژورم امام خوش کرن وول آسان مختار پنہ کامہ ستن شیم ستم امام عزیزان گرامی باقی امام ترے امام دعا کران مختار سند خاطر چاہے سہ پانچم امام چاہے ژورم امام چاہے شیم امام ترے امام مختار سند خاطر کیا دعا کہ مختار سند کارنام واریہ بہترین کارنام مختار سز کام واریہ بہترین کام عزیزان گرامی اگر تہ بوزمت علمی اختلاف عوام گھن یمن چیزن مز کیا گھن ماس کہین علمی مسائل آسان ات ہیکن علماء کیا پانے حال کرت مگر معمولی چیزن پہ گھن انسان کیا حد کھت زیادہ بڑن کیل مختار سند کارنام ست گو امام خوش مختار سند کارنام ست گو ژورم امام خوش لہذا مختارن یل قیام کور تمام یم زن دشمن خدا یہ کیسا یمن باغ آمت ہاؤنے تم ساری باغ گئی نابود کم ست مختار نے قیام ستن دشمن تم مختار کو مولا علی نے نشان لیاقت عطا کیا ہے جب وہ بچہ تھا مولا علی نے اسے سمجھدار اور ہوشیار کہا اور فرمایا یہ بچہ اہل بیت کے دلوں کے زخموں کے لیے مرہم بن جائے گا مختار کا ہاتھ خدا کا دست انتقام تھا جس نے رسول خدا کے لگتے جگر کے قاتلوں سے انتقام لیا اکھاڑ پھینکے ایسے شخص کو ایسی تنظیموں کو ایسے ممبروں کو جو وقت کے علی کے نوکروں کے خلاف کوئی بات کرے اکھاڑ پھینکے روایت سازیاں کی گئیں دونوں نے حکومتوں نے مل کے اور پھر اس کے بعد بنی امیہ کے بعد بنی عباس آئے تو ان کو بھی ظاہر ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے دشمن سے دوستی کرنا ہے لیکن ایک بات تو طے ہے کہ جتنے ائمہ تھے جی ان سب کو بنی امیہ اور بنی عباس کے ہی دور میں شہید کیا گیا چاہے تلوار سے کیا گیا ہو چاہے اور سازشیں رچی گئی تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ آپ صرف جناب مختار نہیں جب مولا علی کے لیے وہ روایت سازی ہو سکتی ہے کہ مد اللہ
शराब पी के जो नमाज, डॉक्टर इसरार ने जिसको कोट किया था, फिर शाम वाले जी ताहिरुल कादरी ने भी उसे कंडेम जी, किया। उसके बजाय मौला अली का मादुल्ला नाम दिया जा सकता है। तो फिर मुख्तार तो जाहिर है कि मौला अली के मुकाबले तिरमिज़ी में में वो रवायत मौजूद है मौला अली से शराब पीने वाली तो फतवा माज़अल्लाह। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि पहले एक आम जायजा लिया जाए। दुश्मनान अहले बैत ने दोस्तदारान अहले बैत के लिए, चाहे वो इल्मी हैसियत से नुमाया वजूद रखते रहे हों, चाहे अपनी मारिफत और अपने तक़वे के लिहाज से नुमाया शख्सियत के मालिक रहे हों, चाहे सियासत और हुकूमत के एतबार से नुमाया शख्सियत के मालिक रहे हों, उन सब की किरदार कुशी की है। और यह किरदार कुशी हर दौर में हुई है, एक जनाब मुख्तार के लिए नहीं। ख़ास करके हर दौर में अइम्मा ताहिरीन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद अइम्मा की सीरत, और मैं यहाँ पे एक जुमला अर्ज कर दूँ, रहबर इनकलाब आग़ा ख़ामेनी हफ़ज़हुल्लाह, जो आबरू शीयत हैं इस वक्त और हिफाजत कर रहे हैं, और जिन्होंने दुनिया को दहशतगर्दी से नजात दिलाने में ISIS जैसे मलून तमाम मज़ारात की के नहीं, इंसानियत को ज़बह करने वालों को उससे नजात दिलाई, वरना इस्लाम को बदनाम करने वालों को। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अगर आप देखें इस तसलसल से, तो शुरू से आखिर तक मुसलसल ऐसे अफराद के खिलाफ मुहिम चली है। उसमें जितने अच्छे लोग गुजरे उनके खिलाफ ये चीज़ें हुई हैं। अइम्मा ताहरीन की सीरत क्या थी, मैंने हमने का हफ़ज़ुल्लाह का नाम लिया, रहबर का, उन्होंने किताब लिखी है शख्सियत 150 साले। ये शहीद बाक़िर सद्र का नज़रिया सबसे पहले सामने आया कि ये शख्स और फ़र्द अलग अलग हैं, लेकिन हमारे 12 अइम्मा एक शख्सियत हैं। बेशक अइम्मा ताहरीन का सैयदुश्शुहदा के क़याम के बाद एक तरीक़ाकार ये रहा कि उन्होंने कभी हथियार नहीं डाले और अब निज़ाम जुल्म का मुकाबला न किया जाए, निज़ाम अदल न कायम किया जाए। तो इस पूरे अइम्मा की का वजूद एक वजूद है जो हालात ज़माना के तहत, उस वक्त के तकाज़ों के तहत उनके जिम्मेदारियां जो है उसको अदा कर रहे हैं। मगर तमाम अइम्मा की सीरत में देखने को मिलता है कि उन्होंने हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की मुहिम चलाई, और अज़ा का हुक्म और अज़ा का एहतमाम भी उसी मुहिम का एक हिस्सा था। इस मुहिम के नतीजे में हमेशा पूरी हुकूमतों में इनकलाब लाने वाले, हुकूमत के मुखालिफ जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाले खुल के अइम्मा ने कहीं क़यादत नहीं की ऐसों की। लेकिन आप सब के बारे में पढ़ेंगे तो ये मिलेगा कि हर जगह पीछे इमाम की हिमायत ऐसे तो एक ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने अइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलाम की मर्ज़ी के खिलाफ अमल किया और इमाम ने उन पर लानतें की, जैसे ज़ैदुन्नार। लेकिन बाकी की अक्सर की पुष्पनाही अइम्मा से थी। हालात ये थे कि आप अइम्मा सामने आके काम नहीं कर रहे थे। उसी में एक जनाब मुख्तार हैं, उनके में बहुत तोली बात कर ली मैंने। 2 तरह की रवायतें उनके बारे में, उनकी किरदार कुशी वाली भी हैं और उनकी हिमायत वाली भी हैं। और उसमें सैयद सज्जाद का फ़िक्रा है, 5वें इमाम का, एक जुमले में 3 बार उन पर दुआए रहमत करना। और यह रिवायत सही है, सहीहा है। और हमारे उलमा में जो रिजाल लिखने वाले हैं, अल्लामा मामकानी, आग़ा खुई रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी मुजम्मुर रिजाल किताब है, उसमें उन्होंने कहा कि यही एक रिवायत जिसमें 5वें इमाम ने उन पर 3 बार दुआ रहमत की है, उनके मोमिन और लायक दुआ इमाम होने की दलील है। तो अब उसके बाद जब ये मजबूत दलीलें उनके ईमान, उनकी इमामत के इकरार और उस पर मौजूद हैं, तो बाकी जो रिवायत साजी की गढ़ी हुई, कारखाने की निकली हुई चीज़ें हैं, उन पर आंख मूंद के एतबार कर लेना अजीब गरीब बात। मेरे एक बात नहीं समझ में आती कि गवर्नमेंट ऑफ ईरान ने इन पर सीरियल बनाया, ठीक है, और गवर्नमेंट ने बनाया है या प्राइवेट में नहीं कह सकते। नहीं, देखिए आप लोग जदीद असल में बनाया आप जिसने बेहतर भी, करते हैं। ये बना जमहूरियत इस्लामी में है और वहाँ का निज़ाम ये है कि कोई चीज वहाँ बनेगी तो कंट्रोल वहाँ के ज़राए इब्लाग पर कंट्रोल जो है हुकूमत का ही नहीं है, फिक्र का भी है, स्पिरिचुअल वहाँ के जो हेड है, रूहानियत का कंट्रोल, उनका कंट्रोल है, यानी खामनाई साहब का कंट्रोल बिल्कुल है। तो इसके अब अगर वो वहाँ से है, और उसके बाद बहुत से मुहक्किक हैं, और मैंने भी जो देखा, जो उलमा के नजरियात देखे, उसमें खामनाई साहब भी जो है जनाब मुख्तार की तारीफ करते नजर आ रहे हैं, ठीक है। खुई साहब का तो पूरा उनके सिलसिले में यह है कि उनके खिलाफ जितनी जम की रवायतें हैं वो गलत हैं। तो जब ये तहकीक हो चुकी
यानी अल्लामा मजलिसी को या दीगर जो कुतुब हैं उनको उससे पहले उन लोगों ने भी पढ़ी हैं और पढ़ने के बाद तहकीक करके एक सीरियल बनाया है, तो उसके बाद इस तरह की बातें करना क्या है, और इसमें जो सीरियल बना है तो इसकी तहकीक किसने की, इसके बारे में मैं चाहता हूं कि आप जरा सर। ईरान में जो वो सिस्टम है सदा सीमा जिसे कहते हैं वहाँ की जबान में जी सियासत है, यानी निज़ाम को जुल्म से पाक करके, माशरे को जुल्म से पाक करके अदालत का निज़ाम कायम करना, ये है सियासत दीन। वो अइम्मा के सिर्फ सीरत के पहलू में उन्होंने किताब, जैसे नाम लिया मुझे किताब याद आ गई, सिर्फ एक पहलू पे जिस इंसान ने तहकीक की सियासत की, वो चौथे इमाम की सियासत। तो इसके मतलब जलालुल अय्यून पर भी उनकी है, दस्तगीर साहबी किताब पर भी है, बिहारुल अनवार पर भी उनकी तहकीक है। तो अब ये सब तो आप वो मजमूओं का तज़किरा कर रहे हैं। आजकल जो रेफरेंस दिए जा रहे हैं जनाब, तो इसलिए मैंने कहा आजकल अखबारी मिजाज गालिब आ गया है, माफ कीजिएगा। देखिए बच्चों के बीच में सोशल साइट्स के ऊपर जो रेफरेंसेस डाले जा रहे हैं, मैं पहली बात यह करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ कोई किताब सही नहीं है सिवाय कुरान मजीद के। वाह वाह, हमारे यहाँ कोई सही नहीं है, पहली बात। ये कुतुब अरबा उसूल अरबा भी सब कलेक्शन कोई है, selection किसी नहीं। किताब के लिए हम अरब कीदा वो नहीं, जो हमारे भाइयों का कीदा है कि उनका सिहाय सित्ता है, इसके अंदर जो है कुरान के बराबर मोतबर मजहब अहले बैत में जो मजहब अक्ल है, मजहब दिरायत है, मजहब बसीरत है, मजहब शऊर है, मजहब फरासत है, उसमें सिवाय कुरान मजीद के। नाज़रीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे यहाँ जो भी कुतुब है वो सब कलेक्शन है, वो सिलेक्शन नहीं है। जब तक उनकी रवायत को दरायत पर परखा नहीं जाएगा उसको बयान करना गैर जिम्मेदारी है। अब मैं चाहूंगा कि आप इस अपनी बात मैं ये अर्ज करना चाहता था कि मजमुओं के हवाले देना, फला किताब में कुरान में दिखाओ तो आंख बंद करके मानेंगे, फिर उसके बाद उसूल काफी से लेके बिहारुल अनवार तक, और उससे भी ज्यादा वो मजमुए जिनके जमा करने वाले बहुत वसीउ सदर थे, जो इमाम के नाम लिखा मिल गया डाल दिया, और वो नेक नियत थे, उनका मकसद था गुम होने से बचाना। उन्होंने जमा कर दी, आ जाए उसके बाद रिसर्च करेंगे, आएंगे, इज्तिहाद करेंगे। गौर मैं उस सिलसिले में पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला कहूंगा कि रुब्बा हामिला फिक्हिन इला मन हुआ अफक़हु मिन्हु। बहुत से वक्त जगह ऐसी होती है जब फिक्ह को, फिक्ह यानी फहम दीन, यानी दीन की बात, दीन की समझ, बहुत सी जगह ऐसी होती है कि दीन की बात को, रिवायत को, हदीस को मुंतकिल करने वाला मुंतकिल करता है उनकी तरफ जो उससे ज्यादा बड़े फकीह दीनी समझ रखने वाले होते। यानी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मतलब यह है कि इंसानियत तरक्की करेगी, इल्म बढ़ेगा, अक्ल बढ़ेगी, अक्ल वसी होगी, तो जो पीछे है अगली नस्ल उससे ज्यादा बाशऊर, उससे ज्यादा, साइंस में आप देख लिए, तमाम इजादात में देख लिए, बैलगाड़ी जो है आज तरक्की करके कहाँ पहुंच गई। तो हर जगह इल्म अपने से, हर वक्त आलिम अपने से ज्यादा आलिम, ज्यादा जी शऊर, ज्यादा जी अक्ल के हवाले करता है। ये माजी के शख्सियत परस्ती हमारे यहाँ नहीं, हम सब का, हमारे उलमा सब लायक एहतराम है, लेकिन हमको किसी के नाम से डराया जाए, बिल्कुल सही, हम किसी आलिम के नाम से नहीं डरेंगे। इसके मतलब एक ये बात जो बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि जो लोग भी किसी भी रवायत को बगैर सोचे समझे कोट करके और ये पल्ला झाड़ लेते हैं कि तो ये हदीस का मिजाज है जो हमारे दरमियान अखबारियत के नाम से आ गया। और अल्लाह शहीद मुतारिन लिखा है कि उनके उस्ताद आयतुल्लाह लज़मा बुरुजर्दी ने ये कहा था कि जिस जमाने में जरिए हुसूल इल्म सिर्फ हवास से जाहिर हैं, अक्ल नहीं है, उसी जमाने में इधर वहाबियत वजूद में आई है, और उसी जमाने में अखबारियत वजूद में आई जिन्होंने अक्ल को किनारे लगा दिया और मूंद के आंखें रिवायत को मोतबर करार ले दिया। मोतबर रिवायत नहीं है, मुतलक इमाम के नाम से कोई मंसूब चीज़ मोतबर नहीं जब तक कि उस मंसूब चीज़ का इमाम की ज़बान से अदा होना साबित ना हो जाए, जिसके इल्म रिजाल है, इल्म रिजाल सनद को समझने के लिए, फिर मतन रिवायत को समझने के लिए उसमें उस इल्म हदीस और इल्म उसूल हदीस है और इल्म दिराया है। हमने इल्म दिराया को किनारे रख दिया है, हर रिवायत लिए टहल रहे हैं, हर एक आदमी कोट करते हैं, हर आदमी रिवायत उठाता है, कहीं से उठाया, और आजकल व्हाट्सएप पे वो फर्जी काम हो रहे हैं कि
अल्लाह की पनाह नकली ये बताइए फर्जी कि किताबों के इमाम नाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के ज़माने में ये सवाल आया कि बाज़ लोगों ने बयान किया कि आपके जानिब से और आपके जद की जानिब से बहुत सी हदीसें नक़ल होती हैं, बताइए उसमें सही कौन सी है, गलत कौन सी है, हमें कैसे पता चले? क्योंकि जो जालसाजी करने वाले हैं, गढ़ने वाले अफराद हैं, वो भी वही असनाद लेके आएंगे जो मोतबर होंगे, और जो मोतबर हदीस है ही असनाद के एतबार से तो है ही हैं। तो ऐसी सूरत में हम कैसे परखें कौन सी हदीस सही है, कौन सी गलत है? मैं गलत हदीस भी उन्हीं अफराद के ज़रिए से जो सही माने जा रहे हैं नाम मतलब वही जैसे लिखे हुए हैं। जैसे ज़ुरारा से हदीस नकल है, अबू बसीर से हदीस नकल है, जबकि अबू बसीर जो है मोतबर शख्सियत हैं। इमाम ने इनके बारे में फरमाया कि अगर ये अफराद ना होते तो दीन ख़त्म हो जाता। मोहम्मद इब्न मुस्लिम या ज़ुरारा इब्न आयून या अबू बसीर, ये वो अफराद हैं कि जिनके बारे में इमाम ने फरमाया कि अगर ये ना होते तो दीन ख़त्म हो जाता। दीन अगर है तो इनकी वजह से है, उन्हीं के नाम से रवायत साजी हो गई। उन्हीं के नाम से रवायत साजी हो गई। इल्मे रजाल पर तो वो फिट है, अब कै- उनके नाम से जी, कुछ गढ़ दिया गया। गढ़ दिया गया। अब कैसे समझे कि कौन सी सही तो कौन सी इमाम ने गलत क्या है? फरमाया? जो इमाम ने फरमाया, अच्छी बात है, इमाम ने फरमाया कि कुरान मजीद के सामने अर्दा किया जाए, पेश पेश किया किया जाए, अगर जाए, मिल जाए तो जांचा जाए। जांचा जाए। अब अगर कुरान के मफाहिम से वो हदीस जो है वो टकरा रही है, मुताबिक है तो हमारी है, और अगर उससे मुखालिफ है तो हमारी नहीं, बल्कि उसको दीवार पे दे मार दी जाए, यानी उसको छोड़ दिया जाए, तर्क कर दिया जाए। तो एक मेयार भी सही हदीस का, जैसा कि मौलाना ने फरमाया है कि मेयार हदीस तय करने के लिए भी हमें कुरान मजीद की तरफ रुजू करने के लिए इमाम ने फरमाया। तो सही और गलत इसी तरह से हम शख्सियात के बारे में भी देखें। अगर शख्सियात को देखा जाए तो उनके खिलाफ जो मोतबर शख्सियतें थी उनको भी किसी न किसी तरह से उनको कमज़ोर करने के लिए पेश किया गया है, उनके किरदार को मखदूश करने की कोशिश की गई है ना? जैसा कि अभी मौलाना ने तज़किरा किया कि उन्हीं में से मतलब जनाब मुख्तार के सिलसिले में जनाब मुख्तार की शख्सियत है, उनको भी मजरू किया गया है। हालांकि जनाब मुख्तार हैं, जनाब मीसा में तम्मार हैं, जनाब कुमैल हैं, ये वो शख्सियतें हैं। समय तम्मार से भी तो जनाब मुख्तार की बातचीत है, जरा उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दें। ये वो अफराद हैं कि जिनको राजदार थे इमाम के, यानी जनाब मीसा में तम्मार राजदार थे। राजदार थे इमाम मौलाए कायनात के। ये राजदार असहाब में से हैं कि जिनको इमाम ने बताया कुछ ऐसी बातें कि जो आइंदा पेश आने वाली हैं। उनमें से मसलन इनकी शहादत के बारे में कि जनाब मिस्र में तम्मारो की तुम्हारी शहादत वाक़ होगी, और किस तरह से वाक़ होगी। जब इन्हें पता चला तो बहुत खुश हुए और जाते थे, याद करते थे। समय तम्मार अगर किसी की मौत को शहादत कह रहे हैं तो इसका मतलब ये अली कह रहे हैं। तो जनाब मीसा में तम्मार ने, क्योंकि हम अपने टॉपिक पर है, जनाब मीसा में तम्मार ने जनाब मुख्तार के बारे में क्या कहा? जी, मैं भी आ रहा हूँ इसी बात पे। जल्दी जनाब मुख्तार जनाब मीसा में तम्मार की शहादत जो वाक़ होती है, वाक़ करबला से यानी आशूर से, यानी 18 दिन पहले, यानी 22 ज़िलहिज को शहादत जनाब मीसा में तम्मार की 18 दिन पहले। और वो शख्स जब उनको निकाला जा रहा जिंदान से कि सूली पे चढ़ाने के लिए शहादत की तरफ जा रहे हैं, जब कदम उठा रहे हैं, तो उसी वक्त जनाब मुख्तार से मुलाकात होती है। और उस वक्त आप एक जुमला फरमाते हैं कि अंता तखरुज, तुम खुरूज करोगे, तुम इनकलाब बर्पा करोगे, तुम क़याम करोगे। यानी गोया अपनी शहादत की तरफ भी खबर दे रहे हैं और उनके आइंदा जो इक़दाम होने वाले हैं उसकी तरफ भी खबर दे रहे हैं। कौन? ये मीसा में तम्मार, जो राजदार है, जो राजदार तालिब थे, वो जनाब मीसा में तम्मार से कह रहे हैं, जनाब मुख्तार से कह रहे हैं कि तुम खुरूज करोगे। किसके खिलाफ? उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इमाम हुसैन इस्लाम को कत्ल किया। मैं आपकी बात यहीं पर रोक कर एक बात, जनाब माफ करिएगा, जनाब मुख्तार की जिंदगी इनकलाबी जिंदगी, जुल्म के खिलाफ आवाज, इमामत की तायीद में कदम, ये शहादत हुसैनी के बाद नहीं शुरू हुआ है। जनाब मुख्तार की सीरत पढ़े जरा से, तो माविया के दौर में जब वो यजीद को अपने बाद बादशाह बनाने के चक्कर में था, उस वक्त जनाब मुख्तार बसरे गए और वहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सिलसिले में लोगों को बयान करना शुरू किया और चाहा कि लोग इमाम की तरफ मायल हों और उनकी बैत करें। इतना बड़ा इनकलाब बसरे में पैदा कर डाला था कि वो उस वक्त वहाँ इब्न ज़ियाद मलून हाकिम था, उसने उनको सज़ा दी, फिर बसरे से उन्हें निकाला गया। आप लोगों की बातों से जो
میں ایک بات کیونکہ سلپ ہو جائے گی، بہت اہم بات آپ نے جو کی تھی اس کو، چونکہ دیکھیے روایتیں مسلسل اس طرح کی آتی رہیں گی، تو آپ نے ایک بتا دیا کہ جس طرح سے پیٹرول کو ٹیسٹ کرنے کے لیے لٹمس پیپر ہوتا ہے، دودھ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے لیکٹومیٹر ہوتا ہے، سونے کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کسوٹی ہوتی ہے، ویسے ہی روایتوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے قرآن مجید ہے۔ جو روایت قرآن سے ملے گی اسے مانا جائے گا، جو قرآن سے ٹکرائے گی اسے دیوار پر مار دیا میں جائے ایک گا۔ ذرا اور وضاحت کر دوں، جناب مختار کے سلسلے میں بات ہوگی کہ قرآن میں شخصیات کے مربوط روایتیں چیک کرنے کا کوئی پیرامیٹر نہیں، اگرچہ غلط ہے، اس لیے کہ قرآن میں ایمان، تقوی، علم، ان چیزوں کو معیار بنا دیا گیا، شخصیات اس پر کی جائیں گی، لیکن شخصیات کے بارے میں سیدھے ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب روایت سے ٹکرائے، ہمارے فقہی نظام میں جب ہمیں درس فقہ پڑھائی جاتی ہے تو اس میں روایتوں میں ایک مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، روایت کا روایت سے ٹکرانا۔ یہ روایت ایک بات یہ کہہ رہی ہے یس، وہ کہہ رہی نو، تو جانچ شروع ہوتی ہے، اس کی سند اس کی سند دونوں ٹکر کے نکلے، دھیرے دھیرے آخر میں آ کے اب دونوں برابر کے نکلے چلے جا رہے ہیں، تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان میں سے کون سی روایت دوسری روایات صحیحہ یا موثقہ کے مطابق ہے، ان کو قبول کیا جاتا ہے اور دوسری کو رد کر دیا جاتا ہے۔ جب چوتھے امام سے، پانچویں امام سے، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے چھٹے امام سے، اور آغا خوئی رحمۃ اللہ علیہ جیسے حساس عالم جو آسانی سے کسی کی تائید نہیں کرتے، علم رجال میں جنہوں کو کتاب لکھی جو اب تک اس جیسی کتاب وجود میں نہیں آئی، پوری زندگی لگا دی انہوں نے، اس میں وہ جناب مختار کو مدح میں ان کی جو روایتیں آئی ہیں ان کو معتبر قرار دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جو ان کے خلاف روایتیں آئیں اس میں نبوت کا دعویٰ بھی ہے، مختار نے نبوت کا دعویٰ کیا، مختار نے امام جناب محمد نفیہ کی امامت کا اعلان کیا، مختار کے نام پر کیسانیہ بنا، کیسان جناب مختار کا لقب تھا۔ آغا خوئی رحمۃ اللہ علیہ یا اسی طرح امام قانی، ان میں سے کسی نے لکھا ہے کہ کیسانیہ فرقے کا وجود جناب مختار کی شہادت اور جناب محمد نفیہ کی وفات کے بعد کی چیز ہے، بنی امیہ رہے ہوں گے۔ ہاں بالکل صحیح ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ روایتیں دونوں ہیں، لیکن ہماری نگاہ میں مختار کے خلاف روایتیں اتنی کمزور ہیں کہ انہیں کوڑے دان میں ڈال دو، کوئی یہ کہہ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد آج تک کوئی ان سے بڑا محقق فی الحال روایات کی پرکھ میں پیدا نہیں ہوا ہے۔ اب دیکھیں اور انہی روایتوں کے سلسلے میں بات بسم اللہ تو نہیں ہے بہرحال استاد محترم ماشاءاللہ نہیں استاد محترم زیادہ بول رہے ہیں، لیکن یہ بچے جو ہیں ربا حاملہ فقہ الی من ہوا افقہ، دیکھیے یہ تبادلہ خیال بہت ہی قیمتی ہے، یہ نوجوانوں کے بیچ میں جائے گا، یہ ایک پیرامیٹر ہوگا، اس سے اصلاح ہوگی، اختلاف ختم ہوگا۔ بالکل آپ جو معیار بتایا گیا ہے روایتوں کو پرکھنے کا، اگر روایتوں میں ٹکراؤ ہو جائے تو سند کے اعتبار سے بھی صحیح دونوں ہیں، تو ایک چیز جو معیار بنایا گیا ہے کہ وہ آپ کئی ہیں۔ ایک مجھے یہ بھی پتا چلا کہ ایک روایت میں جناب مختار کو امام حسن علیہ السلام کا مخالف ثابت کرنے کی کوشش کی، اور پتا چلا کہ اس کی تحقیق ہوئی، اور تحقیق میں پتا چلا کہ اس کے اندر سے کچھ لائنیں نکال دی گئیں، اور اس بارے میں شہید ثالث نے بھی لکھا ہے اس میں تحقیق کرنے کے بعد کہ یہ جناب مختار کے کیریکٹر کو خراب کرنے کے لیے، کردار کشی کے لیے کام کیا گیا۔ اس کے لیے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ آپ حضرات میں سے اگر جناب دیکھیے جیسے کہ ابھی آپ حضرات کے سامنے میں پہلے یہ عرض کر دوں میں کہ منظر علی عارفی کی ذاتی حیثیت نہیں ہے، سربراہ ادارہ یعنی تنظیم الکاتب کے سربراہ علمی دنیا اس کے روح رواں یہاں تشریف فرما ہے۔ ہم جتنے بھی افراد ہیں ان کے لیے واقعاً ہم یہ کہیں گے کہ وہ ہمارے لیے استاد ہیں، ویسے تو شاگرد ہیں، ہم ضمناً بول رہے ہیں تاکہ جناب مختار ثقفی علیہ رحمہ کے لیے ہمارے چند الفاظ ہم اپنا حق ادا کرنا چاہتے ہیں، بس وہ ہمارے حق ہے جو اسلامی فریضہ ہمیں ادا کرنا ہے، اپنی ذمہ داری جناب مختار کے لیے امام علی علیہ السلام کا اپنے زانوں پر بٹھانا، پیار کرنا اور یہ کہنا مختار تم اسی کوفے میں حاکم کی حیثیت سے ہوگے اور تمہاری تلوار سے دشمنان حسین، دشمنان اہل بیت قتل کیے جائیں گے، جس کو وقت کا امام دعا دے کر جا رہا ہو۔ کیا بات ہے، یہ ان کا اپنا کارنامہ تھا، مگر یہ قربانی والا مزاج اور انقلابی مزاج خود ان کا تھا۔ آج کے دور میں اگر کوئی جناب مختار ثقفی پر انگشت نمائی کرتا ہے
तो कहीं ऐसा ना हो कि बोलने वाले जो अगर उनकी हिमायत में बोले, हालांकि हम उनको फॉलो करने वाले होते क्या, हमारी हैसियत क्या है, तो कहीं जिस तरह आज अखबारियत उरूज पर है, जिस तरह से नौजवानों को उधर बहकाया जा रहा है जी उस तरह से ये क्लासेस के अंदर जनाब मुख्तार की किरदार कुशी करके जो नौजवानों को वर्गलाया जा रहा है, ये भी तो आने वाली इसका एक मुख्तसर सा जवाब ये है कि अब जब हम हक बयानी करेंगे और जनाब मुख्तार सक़फ़ी के लिए जो भी हमारे ये नाक़िस अल्फाज हैं ये आप तक पहुँचेंगे और नाजरीन तक पहुँचेंगे, कहीं आने वाले ज़माने में लोग ये ना कहने लगें कि ये मुख्तारी हैं, ये गैर मुख्तारी हैं। हालांकि उनके बारे में जो कहा जाएगा वो उनका हक है जनाब मुख्तार सक़फ़ी अलैहि रहमा का, उनकी क़ुरबानियाँ और उनकी क़ुरबानी के रद्द अमल में और नतीजे में अहले बैत अलैहिस्सलाम के घरों में चिराग का जलना, मासूमीन का खुश होना, मासूम का उनको दुआ देना, इस बात की अलामत है। ये फेले मासूम है, फेले मासूम है। उस मुख्तार एक्शन के सक़फ़ी ऊपर की जो ये रिएक्शन है वो ये है कि यहीं पे आपने दूसरा मौजूद छेड़ दिया है, फिर मुझे माफ करेंगे क्योंकि आपने तो अभी हम लोग कौल मासूम पे बात कर रहे थे, अब आ गई सबूत 3 है, कौल मासूम, फेल मासूम, तकरीर मासूम। तकरीर का मतलब तकरीर उर्दू वाली नहीं, अरबी और इल्मी, यानी उनके सामने कुछ हो और वो मकाम तकिया में न हो और उसके बावजूद उसको न टोके। अइम्मा कभी ऐसा भी हुआ उनके सामने गलत खिलाफ शरीयत अमल हो रहा, लेकिन वो हालात हुकूमत जौर उसके तहत टोक नहीं सकते। तकिया की कैफियत है तो वहाँ पर तकरीर मासूम में शर्तें हैं। हमारे 11वें इमाम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का आप नमूना देखें, लोग मिल नहीं सकते थे, तो मुअय्यन था हफ्ते में 2 दिन जाएंगे बादशाह वक्त से मिलने के लिए, छुप छुप के दूर दूर से देखते थे। तो इमाम ने कहलाया था कि देखो मेरी तरफ उंगली का इशारा भी न करना वरना तुम रह नहीं पाओगे। वो जज्बात में आके चाहता था कि पहचानवाए, देखो मेरे इमाम जा रहे हैं, कि नहीं चुप रहो, इस उंगली का इशारा भी न करना। तो फेल मासूम, तकरीर मासूम, सबकी शर्तें हैं। कौल मासूम में शर्तें हैं, ये आम लोगों को समझा दिया थोड़ा सा, क्योंकि हम समझ रहे हैं आप। देखिए, एक कौल मासूम है, हुज्जत है, यानी जैसे कुरान मजीद की आयात से हुक्म खुदा का पता चलाया जाता है, उसी तरह से मासूम की ज़बान से निकले हुए कलिमात भी वही हैसियत रखते हैं। और जो पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की हैसियत और हुज्जतियत है वो कुरान के बराबर है, इसलिए कि कुरान कहता है वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते। और जो अइम्मा ने कहा है उनकी ज़बान से निकली कलिमात की वही कीमत है जो पैगंबर की, इसलिए कि हमारे छठे इमाम हज़रत जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने कहा है कि जो बात तुम्हारे पास हो हमारी, तुम्हें यकीन हो कि हमने कहा, लेकिन ये याद न रह जाए कि हम में से किसने कहा, तो कह दो काला रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल ने कहा, इसलिए कि हम कोई बात अपनी तरफ से कहते ही नहीं, हम जो कहते हैं अपने जद की तरफ से कहते हैं, और पैगंबर अपनी तरफ से नहीं कहते थे, जो कहते थे अल्लाह की तरफ से। तो कौल मासूम इसलिए हुज्जत है, मगर पहली शर्त है कि कौल मासूम होना साबित हो। खाली इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, आजकल किताबों जो दुआ तावीज़ गंडे की और व्हाट्सएप पे चल रहा, हर चीज इमाम इस लिख देने से हमारा तकद्दुस वाला मिजाज जो है कि जो महिमा की तरफ मंसूब हुई कोई चीज और हमने उसको मोहतरम माना, अरे नहीं, हमने कोई तस्वीर हम इतना जुड़े हैं कि उनके नाम के बाद हमारी जज्बातियत इतनी गालिब हो जाती है कि हमारा शऊर उसके पीछे चला जाता है। जो चीज उनके नाम से मंसूब हुई हम आंखें मूंद के उससे मोहब्बत करने लगते, उससे प्यार करने लगते। उसी में जहां आया इमाम ने फरमाया, बात डर के बैठ गया, ये नहीं देखता कि इमाम ने फरमाया भी है या किसी बेईमान ने गढ़ा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो फिर कौल मासूम में शर्त है, पहली चीज कि उसकी रवायत की सनद मुश्तक इमाम ने मुझसे नहीं कहा। मुश्तक जितने लोगों के जरिए पहुंचा उनमें से हर आदमी भरोसे लायक हो। अगर वो सब शिया इस्ना शरी और आदिल हैं तो हदीस सही कहलाती है। अगर आदिल नहीं है लेकिन झूठ नहीं बोलते थे, भुलक्कड़ नहीं थे, तो वो मौसक कहलाती। बाकी और किस्में सैकड़ों हैं, बच्चे बताएंगे, ये पढ़ा रहे हैं, मैं तो अपने बुढ़ापे की मंजिलों का दर रख चुका हूँ और जो याद रह गया उसमें बता रहा हूँ। तो शर्तें हैं, अगर सनद भी सही है तो वही जो अभी गुफ्तगू हो रही थी, परख की जाएगी कि मफहूम रवायत मुताबिक कुरान है कि नहीं, या रिवायत सहीह के मुताबिक है या नहीं, या अकायद मुसल्लमात से टकरा तो नहीं रहा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। सब पर खा जाएगा। हमारा अकीदा अगर यह है कि अइम्मा तारीन अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं, इमाम हैं,
اب اس کے بعد کوئی روایت اگر نکل کے آتی جو انہیں خدا بنا رہی ہے تو یہ عقائد سے ٹکرا رہی ہے. عقائد جو عقلی دلیلوں سے بھی ثابت ہیں اور جو عقلی دلیلوں کے بعد قرآن مجید عقائد کی ذمہ داری ہے آدمی خود طے کرے, اور عقائد عقلی دلیل سے توحید, نبوت, امامت, قیامت, یہ اصول دین جتنے ہیں یہ عقائد ہیں